اللہ کی راہ پہ جو چل پڑے, سچی توبہ کر لے, اللہ پھر کیسی عزت عطا فرماتا ہے. حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. آپ توبہ سے پہلے شرابی تھے, شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب آپ نے تعظیم کی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا, ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے. آپ نے توبہ کی, عبادت میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے. حافی کہتے ننگے پیر رہنے والوں کو. اب جب آپ ننگے پیر گلیوں میں گھوما کرتے تو اس شہر کے جانور راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ حضرت بشر ننگے پاؤں رہتے ہیں, کہیں ان کے پیر گندے نہ ہو جائیں. ارے وہ شخص جو توبہ سے پہلے شرابی ہے, اب جانور بھی ادب کر رہے ہیں. بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک چرواہے کے ایک جانور نے راستے پر گندگی کر دی تو اس نے کہا ہو نہ ہو لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے. جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, گویا اللہ نے جانوروں کے دلوں کے اندر بھی ان کی عزت ڈال دی, کیونکہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا. انہوں نے دنیا والوں کی پرواہ نہ کی, انہوں نے رب کو راضی کرنے کی فکر کی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ خیال دل سے نکال دو کہ جناب عزت پیسے سے ملتی ہے, عزت شہرت سے ملتی ہے. جناب سوٹ بوٹ ہو, ذرا اچھے کپڑے پہنوں, اچھی جناب لگژری گاڑی سے اتروں گا تب عزت ملے گی. ارے جناب مہنگا موبائل ہاتھ میں ہوگا تب عزت ملے گی. عالی شان کوٹھیوں میں رہوں گا تب عزت ملے گی. یہ بھول ہے تمہاری. آؤ قرآن کیا کہتا ہے, عزت کہاں سے ملے گی, عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ کہتا ہے, قرآن فرماتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے, ساری عزت اللہ کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. خدا کی قسم, دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو, اس کے کروڑوں فالوورز ہوں. لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ فالوور ہونے چاہیے. آج کل تو کسی کا مرتبہ چیک کیسے ہوتا ہے, چیک تو کرو اس کے پیج پر اس کو چاہنے والے کتنے ہیں. لوگ بتاتے ہیں میرے اتنے ملین فالوورز ہیں, اتنے لاکھ مجھے دیکھنے والے ہیں. میں ان سب سے پوچھتا ہوں جن کے کروڑوں فالوورز ہیں, تمہارے فالوورز تمہیں دیکھنے والے گناہ کی وجہ سے ہیں یا نیکی کی وجہ سے ہیں؟ کبھی سوچا کہ 1 کروڑ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہارا ناچ گانا دیکھتے ہیں, تمہاری بے حیائی دیکھتے ہیں, اور وہ جب بھی دیکھتے ہیں سارا گناہ تمہیں بھی ملتا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ فالوورشپ کیا کرنی ہے؟ یار میرے اتنے فالوور, میرے اتنے چاہنے والے, میرے پاس اتنا پیسہ, ساری دنیا تمہیں چاہے اور رب نہ چاہے نا, سب برباد ہو جائے گا. ہاں جب رب نے چاہنا ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے انسان, اور رب نے جس کے مقدر میں عزت لکھی ہے نا اسے ایسا عروج عطا فرماتا ہے. بتاؤ نا کون سا یوٹیوب, کون سا فیس بک تھا خواجہ غریب نواز کے زمانے میں؟ لوگ کہتے اتنے ملین فالوور. میں بتاتا ہوں دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو میرے خواجہ غریب نواز کو فالو نہیں کرتا. امام حسین کے زمانے میں کون سا جناب فیس بک اور انسٹاگرام تھا, مگر کیسا رب کو راضی کیا. ارے وہ مسلمان کیسا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے, سرکار کی آل کی محبت نہیں ہے. دلوں میں بستی ہیں یہ ہستیاں. کیوں؟ رب کو راضی کیا, رب نے سب کو راضی کر دیا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اب رب کو ناراض کر رہے ہیں. نہ کرو ایسا, اللہ کو راضی کرو, اللہ کے حبیب کو راضی کرو. بس لوگ راضی ہو جائیں, دوست راضی ہو جائیں, بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں. ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی, مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے. لوگ کہتے کیا کرے, کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے. ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش, مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے. وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے. وہ جنت کا بھی مالک ہے. اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں. اگر گناہوں والی زندگی ہے, حرام روزی ہے, رب کو ناراض کر رہے ہو, جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے, لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا, کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی, پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی, پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا, پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا, جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس,
सो जा कि जैसे दुल्हन सोती है। अल्लाह करे कि कब्र में जाए तो हमें सुनने को मिले। ऐसा ना हो कि कब्र में जाए तो मार पड़े, कब्र में जाए तो सांप और बिच्छू आ जाए, कब्र में जाए तो आग आ जाए। ऐ नरम बिस्तरों पर सोने वालों, बड़े बड़े बेडरूम और बड़े बड़े ड्राइंग रूम के ख्वाब देखने वालों, दुनिया तो कर ली अच्छी, अगर कब्र में कीड़े मकोड़े आ गए तो किधर जाएंगे? जिंदगी ऐसे गुजारो कि कब्र रोशन हो जाए, जिंदगी ऐसे गुजारो कि कयामत के दिन पुकार पड़े कि ये अल्लाह का प्यारा है। आपको पता है कयामत के दिन एक ऐलान होगा, सबने सूरह यासीन पढ़ी होगी, मैं उस पे ज़न करता हूं और कई बार सुनी भी होगी। उसमें एक आयत है, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा कि मुजरिमों को अलग कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह कितनों में से कितनों को अलग करूं? लोग कहते हैं मेरे पास ऐसा कार्ड है कि मैं वीआईपी लाइन से गुजर जाता हूं, एयरपोर्ट पे मेरे पास फलां लाउंज की है, मैं जाता हूं तो मैं लाइन में नहीं लगता, वीआईपी लाइन से निकलता हूं। आओ मैं बताता हूं, कयामत के दिन भी दो लाइनें लगेंगी। कुरान कहता है वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। हजरत आदम अर्ज करेंगे मौला कितनों में से कितनों को अलग करूं? इरशाद होगा ए आदम 1000 में से 999 अलग कर दो। 999 मुजरिमों की लाइन में होंगे और एक बंदा उन 1000 में से नेकूकारों की लाइन में होगा। सारी दुनिया में वीआईपी लाइन में खड़ा रहा और अगर क़यामत के दिन मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया तो किधर जाऊंगा? कभी सोचा हमने? शराब पीने वाला क्यों नहीं सोचता? नमाजें कज़ा करने वाला क्यों नहीं सोचता? हराम रोजी कमाने वाला क्यों नहीं सोचता? बस बैंक बैलेंस बढ़ जाए, इज्जत मिले दुनिया में, वो क्यों नहीं सोचता? अगर कयामत में मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया कोई सोर्स काम नहीं आएगी। बल्कि किताबों में लिखा कि उस दिन बाप गुनाहगारों की लाइन में होगा और कोई बेटा नेकों की लाइन में होगा। इमाम, ऐसा इमाम भी होगा जो जनाब मुजरिम की लाइन में होगा और मुक्तदी नेकूकारों की लाइन में होगा। ऐसा मुबल्लिग, ऐसा वाइज भी होगा जो गुनाहगारों की लाइन में होगा और उसका बयान सुनकर नेक होने वाला नेकूकारों की लाइन में होगा। लोग कहेंगे हजरत आपका बयान सुनकर तो हम नेक बन गए, हमने तौबा कर ली, आप मुजरिमों की लाइन में कैसे? क्योंकि उस दिन तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। वो बंदा कहेगा कि मैं तुम्हें तो अच्छी बात का हुक्म देता था, खुद नहीं करता था, तुम्हें तो नेकी की दावत देता था, खुद अमल नहीं करता था, मैं तुम्हारे सामने तो नेक नजर आता था, मैं अकेले में बड़ा गुनाहगार था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों फिर ये आयत सुन लो, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो इज्जत का तलबगार हो तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। अल्लाह हमें कयामत के दिन की जिल्लत से बचा ले। इस इज्जत का क्या करना यार? जिधर जाओ लोग खड़े हो जाते हैं, जिधर जाओ लोग प्यार करते हैं, कयामत के दिन जलील हो गए तो क्या होगा? उधर तो जिसके नामा अमाल खुलेंगे तो पता चलेगा ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था दुनिया में, ये देखो इसका हाल ये है, किधर जाएंगे? सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए बड़ी प्यारी दुआ की है कि उस दिन खुल जाएगा सब कुछ ना। आओ अल्लाह से दुआ करते हैं, या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो, या नजरों की हया का साथ हो, या इलाही
शफीए मुर्तजा का साथ हो। फंस गए प्यारे इस्लामी भाई, यकीन करें गुनाहों के दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इतने उलझे हुए मामलात है, सिरा किधर से मिले, कैसे नेकियों के रास्ते पे चल पड़ूं, कैसे अल्लाह को राजी करूं, इतने गलत काम है, इतनी चीजें हैं। उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं अल्लाह की राह की तरफ, राह खुदा की बहुत सारी मंजिलें हैं। मकाम वरा, मकाम ज़ुहद, मकाम फ़क्र, मकाम सब्र, तवक्कुल, रिज़ा। कहते हैं इन तमाम सारी मंजिलों का जो सिरा है ना, पहला कदम जो है वो तौबा है। अगर आप वाकई अल्लाह की राह की तरफ चलना चाहते हो ना कि बस यार मैं किसी तरह तो अल्लाह की तरफ चल पड़ूं, तो पहला कदम जो है ना वो तौबा है। आप तौबा करें, अल्लाह करीम रास्ता खोल देगा, फिर नेकियां करना आसान होंगी, फिर इंसान करीब होता चला जाएगा अल्लाह की रहमत से। लेकिन पहला कदम तौबा है। और तौबा करने वाले मोमिन की मिसाल क्या है? सुनो, एक मरतबा अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बहुत खूबसूरत हसीन और जमील परिंदा वहां आया और आपके सामने जमीन पर लौटपोट होने लगा। उसने अपने आप को जमीन पर इतना रगड़ा कि उसकी खाली उतर गई। अब वो सुर्ख, गंजा और इंतहाई बदसूरत नजर आने लगा। इसके बाद वो बहते पानी में गया, उसके बाद वो कीचड़ में गया, तो कीचड़ में लौटपोट हुआ तो और बदसूरत हो गया। पहले बाल उतर गए, अब जिस्म भी गंदा हो गया। उसके बाद वो बहते पानी में गया, वहां नहाया तो पहले जैसा हुस्न लौट आया, जिस्म से कीचड़ भी उतर गया, खाल भी नहीं आ गई, पहले जैसा हो गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पता है क्या फरमाया अपने हवारियों से कि ये परिंदा तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर भेजा गया है, कि मोमिन की मिसाल है। मोमिन बंदा जब गुनाह करता है ना, अपने आप को बदसूरत और गंदा कर लेता है, फिर जब वो तौबा करता है तो गुनाहों की सियाही उससे दूर हो जाती है और वो पहले जैसा हसीन और जमील हो जाता है। हाय हाय हाय, जरा गौर करें प्यारे इस्लाम, हमने क्या किया अपने साथ? कभी तसव्वुर तो करना, मैं दुनिया में किस लिए आया था, मेरे दिन रात किन कामों में गुजर रहे हैं। मेरी आंखें तो अल्लाह ने कुरान देखने को दी थी, कुरान पढ़ने को दी थी, इन आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे जबान जिक्रुल्लाह करने के लिए दी थी, मैं इससे क्या बोल रहा हूँ। मेरे कान तिलावत और नात और नेक बातें सुनने के लिए थे, मैं सुन क्या रहा हूँ। दिन आने वाला है जब मलकुल मौत आएंगे, मेरे जिस्म से मेरी रूह को खींच लिया जाएगा, मुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, फिर अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा, तो फिर मैं क्या कर सकूंगा? फिर तो कोई जवाब नहीं होगा ना। आपको पता है बंदे के पास अल्लाह करीम के दो राज हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बंदे के पास अल्लाह पाक के दो राज होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदे की तरफ इल्हाम फरमाता है। नंबर एक, जब अपनी माँ के पेट से जब बाहर आता है ना, अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में पाक और साफ सुथरा निकाल दिया है और जिंदगी देकर तुझे इस पर अमीन बना दिया। अब मैं देखूंगा कि तू अमानत की जिम्मेदारी कैसे निभाता है। और जब उसकी रूह निकलती है ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी अमानत के साथ क्या सलूक किया? अगर तूने उसकी हिफाजत की, वादे पर कायम रहा और इस वादे को कायम करके मुझसे मुलाकात करेगा, तो मैं भी अपना कॉल पूरा करूंगा। और अगर तूने इसे जाया कर दिया तो मैं भी पकड़ फरमाऊंगा। ये जान जो है ना, ये सांसें, ये अमानत है, ये हमारी नहीं है, ये अल्लाह ने दी है ना। मैं मिसाल देता हूँ आपको, कोई बंदा बड़ी कीमती चीज रखवाए, कोई हीरा रखवा दे, कोई कीमती 15-20 लाख 25 लाख 50 लाख की चीज रखवाए, जरा संभालो, और आपसे वो खो जाए, डबल टेंशन। इतनी कीमती चीज मैंने खो दी, और अब जिसने अमानत रखवाई थी वो मेरा क्या हाल करेगा? ऐसा ही है ना, ये सांसें अल्लाह ने दी हैं, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दी है, उसे राजी करने के लिए दी है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी सांसें गुनाहों में, हमारे दिन गुनाहों में, रातें गुनाहों में गुजर रही हैं। एक तो इन दिनों को जाया कर रहे हो, जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो जवाब क्या देंगे? खुदारा इस जिंदगी की इन अनमोल हीरो की कदर कीजिए, गुनाह मत कीजिए, गुनाहों की आदतों को छोड़ दीजिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ऐसे नबी पाक के फरामीन है कि सुने तो बंदे को ख्याल आता है कि यार ऐसा करीम मौला है, तो फिर मैं क्यों ना तौबा कर लूं। आका फरमाते, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, यानी हर आदमी से खता हो जाती है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। हो गई ना गलती, मान ले, अल्लाह माफ कर दे, हो गई गलती, बंदा हूं ना तेरा, कमजोर हूं, अल्लाह हो गए गुनाह, मैं फंस गया मालिक, मगर अब तौबा करता हूं, ऐ करीम तो मुझे माफ कर दे। वो बड़ा प्यारा, वो बड़ा करम करने वाला मौला है, मगर हम तौबा तो करें ना। याद रखें हम मासूम नहीं है,
मासूम कौन है? फरिश्ते हैं, अंबिया हैं। हम तो इंसान हैं ना, हम जैसे आम इंसानों से खताएं हो ही जाती हैं। हमें तौबा की तरफ बढ़ना चाहिए। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली फरमाते हैं मखलूक 3 तरह की है। नंबर 1 फरिश्ते, ये मासूम हैं, ये गुनाह करते ही नहीं। नंबर 2 शयातीन, ये गुनाह करते हैं, गुनाह छोड़ते ही नहीं। तीसरे नंबर पर फरमाया इंसान, ये खता भी होती है इनसे और तौबा करके नेकियों की तरफ भी बढ़ता है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे गुनाह ना हो, हमसे खताएं ना हो। अब 2 ही सूरतें बचती हैं, गुनाह पर अड़ जाए तो ये शैतान का वस्फ है, और गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे, ये इंसान की अलामत है। गुनाह हो गया ना, आज आ गए हैं जुमेरात को इज्तिमा में, अल्लाह के घर में बैठे हैं, करीम के दर पर बैठे हैं, शाबान का महीना जारी है, बरकतों वाला महीना जारी है। बस अब तौबा करनी है, अब रब को राजी करना है, अब गुनाह नहीं करना है। ये हमने अपना समझ लो आज टारगेट बनाना है। और सुनो सुनो, जब बंदा वाकई सच्चे दिल से तौबा करे ना, तो वो कैसा करीम है। दुनिया में पता ही क्या होता है, हम किसी का जुर्म कर लें, किसी की खता कर लें, किसी को नाराज कर दें और अब उससे माफी मांगे, वो कहता है चलो जाओ मैंने माफ कर दिया, आइंदा मत करना। इतना ही होता है ना, वो भी कोई कर दे तो कर दे, वरना लोग सजा देते हैं। मगर मेरा करीम मौला ऐसा है कि बंदा उसी की नाफरमानी करे, उसी के गुनाह करे, उसी को नाराज करने वाले काम करे और उसके बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो करीम कैसा है, सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुनो सुनो, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी नदामत वाली बंदा तौबा करता है कि अल्लाह उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। आपको पता है विलायत में भी बहुत बड़ा दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। रिवायतों में आता है एक इसराइली शख्स था, उससे कोई गुनाह हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना बेकरार हुआ, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा किसी तरह गुनाह मुआफ हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। गुनाह किया है और शर्मिंदा है, बेकरार है। सुनो किताबों में क्या लिखा है, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में उसकी बेकरारी, उसकी शर्मसारी, उसकी नदामत ऐसे कबूल होती है कि अल्लाह पाक ने उसको विलायत का जो सबसे आला दर्जा है, सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दिया।